Dear students, let us study our new topic, effect of temperature on adsorption. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है adsorption isobar. You must understand what is meant by adsorption isobar. When we plot a graph at constant pressure, we call it adsorption isobar. So here we determine or study the effect of temperature on extent of adsorption at constant pressure. So we call it adsorption isobar. Dear students, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक. चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, चाहे वो केमिकल है, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज हीट इज इन्वॉल्व. सिर्फ एक डिफरेंस है, इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन heat evolved is less, whereas in case of chemical absorption heat evolved is high. The reason is simple, क्योंकि जो physical absorption है उसमें जो attractive forces बनती हैं वो weak bond forces, जबकि जो chemical absorption है वो permanent bond formation. Chemical absorption में जैसे chemical bond बनता है, वैसे ही chemical absorption में between the adsorbent and the absorbent there is formation of chemical bond. जैसे एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकल हमने स्टडी किया था. ठीक है, तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक. उसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा बच्चे? अंडरस्टूड है, दैट इज डीजॉर्प्शन एंडोथर्मिक. डीजॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. इफ द अबव इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेंपरेचर, ये जो इक्विलिब्रियम है एड्सॉर्प्शन एंड डीजॉर्प्शन का, इस इक्विलिब्रियम को अगर हम टेम्परेचर चेंज से सब्जेक्ट करें, दैट इज से वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन? हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा? लीच-एटली प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर किधर को डिक्रीज हो रहा है? टुवर्ड्स डीजॉर्प्शन. क्योंकि हमने कहा adsorption is exothermic, so desorption, that is backward process, is endothermic. According to Lee-Chatterjee principle, if we increase the temperature, then equilibrium will be shifted backward, that is desorption will be favored. Desorption क्या होगी? Favored. That is extent of adsorption will decrease with increase in temperature. Temperature बढ़ाएंगे तो extent of adsorption कम होगी. Hence, with increase in temperature at constant pressure, extent of adsorption will decrease. The graph between extent of adsorption and temperature at constant pressure is called adsorption isobar. मैंने आपको पहले बताया, adsorption isobar of physical and chemical adsorption show important difference, and this difference is helpful in distinguishing these two types of adsorption. ये हमने दो ग्राफ बच्चे यहाँ पे ड्रा किए हैं, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है, एक केमिकल का है. These two graphs show marked difference. अगर आप इसको गौर से देखें, इनमें marked difference आपको दिख रहा है. वो क्या है? In case of physical adsorption, there is a regular decrease in extent of adsorption with increase in temperature. Whereas in case of chemical adsorption, there is first increase in extent of adsorption and then decrease. Why this difference is there? बच्चे इसमें सिंपल सा आंसर है. वो क्या है कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है दैट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी. केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनना है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी. एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेंपरेचर. तो जो इनिशियल शुरुआत में जो इंक्रीज हुआ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज बिकॉज the heat provided is utilized by the molecule to cross the energy barrier and form the क्या बच्चे? Bond between the adsorbent and the adsorbent. That is chemical adsorption, जिसकी हम बात कर रहे हैं. लेकिन एक बार chemical adsorption का प्रोसेस शुरू हो गया, अंडरस्टूड है, उसमें से हीट एनर्जी लिबरेट होना शुरू हो जाएगी. Now, after the process has started, once the
केमिकल एब्जॉर्प्शन हैज स्टार्टेड, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बच्चे वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगी बैकवर्ड, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। ठीक है, तो जो इनिशियल इंक्रीज है वो क्यों हो रही है? बिकॉज इनिशियल इंक्रीज is helping the process to cross the energy barrier. That is, initial increase in temperature is providing the activation energy for the combination of adsorbent and the adsorbate. एक और फैक्टर यहाँ पे बच्चे हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इसको चलो रीड आउट कर लेते हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार शोज डिक्रीज इन XYM थ्रू आउट विद राइज इन टेम्परेचर। फिजिकल में देखें थ्रू-आउट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। Whereas isobar of chemical absorption shows a initial increase, शुरुआत में इंक्रीज हुई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज, बाद में क्या हुई बच्चे? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। This initial increase is because of the fact that heat supplied act as activation energy required in chemical absorption. Now the last factor on which adsorption depend is एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेशन एड्सॉर्बेंट की कैसे करनी, उसके 3 तरीके यहां बताए हुए हैं। पहला तरीका है कि उसके सरफेस को रफ कर दो। रफ करने से क्या होगा? उसमें पोर्स क्रिएट होंगे छोटे छोटे, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होती है, दिस इज द प्लेन सरफेस, दिस इज द रफ सरफेस। आप देखें यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो मोर द सरफेस एरिया मोर द एब्जॉर्प्शन। दूसरा तरीका है बाय डिवाइडिंग द सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पीसेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। जैसे ये आपके पास पीस ऑफ एब्जॉर्बेंट है, सपोज आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, व्हाट हैपेंस? द सरफेस एरिया इंक्रीज। ये बीच में यहां से आपने काटा तो एक नया सरफेस एरिया ये बीच में क्रिएट हुआ। एक बड़े पीस जो कोयले का एक बड़ा पीस होता है, उसको जलाना आसान होता है छोटे छोटे पीसेस को, छोटे छोटे पीस हो। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है कि हायर द सरफेस एरिया हायर द एब्जॉर्प्शन। आपने जो प्रीवियस फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, उसमें पोस्टुलेट भी है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ गैस। बच्चे के बाद लास्ट जो तरीका है एक्टिवेट करने का एड्सॉर्बेंट को, वो क्या है? हीटिंग, खासकर जैसे चारकोल को दिखाया है, हीटिंग द एड्सॉर्बेंट स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। इससे क्या फायदा होगा? सुपरहीटेड स्टीम की प्रेजेंस में एड्सॉर्बेंट को हीट करने से एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे जो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब है वो वहां से निकल जाएंगे, तो उसका सरफेस है वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा फ्रॉम द एड्सॉर्बेट एंड हेंस जितना ज्यादा सरफेस होगा, आपको पता है बच्चे, उतनी ज्यादा क्या होगी? एड्सॉर्प्शन। सरफेस को हमने एड्सॉर्बेट से फ्री कर दिया बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। तो जो पार्टिकल्स थोड़े बहुत इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड थे, गैस एड्सॉर्ब थी, वो वहां से एस्केप कर जाएंगी। द होल ऑफ सरफेस विल बी अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन एंड हेंस द एड्सॉर्बेंट गेट एक्टिवेटेड। ये था बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इज द कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट क्या है बच्चे? इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थॉमस ग्राम इन 1861, थॉमस ग्राम ने 1861 में सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया इनटू 2 टाइप्स, वन एज क्रिस्टलाइन, अदर एज कोलाइड। इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ their rate of diffusion across animal or vegetable membrane। एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज कर सकते या नहीं, उसके बेसिस उसने कहा जो सब्सटेंसेस एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से आसानी से डिफ्यूज कर जाएंगे उसको हम कहेंगे क्या बच्चे? क्रिस्टलाइन। और जो नहीं करेंगे उसको हम कहेंगे कोलाइड। तो ही सेड दैट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, कॉमन सॉल्ट which diffuse readily,
he called them crystallites. Whereas substances like starch, gum, glue, which are non-crystalline and in the dissolved state cannot diffuse through the animal or vegetable membrane, they were called as but colloids. तो क्या नाम दिया गया बच्चे? Colloids. So this was the classification given by Thomas Graham. But soon his classification proved to be wrong. लेकिन बड़ी जल्द उसकी क्लासिफिकेशन गलत पाई गई. उसने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर दिया. जैसे उसने कहा कि सोडियम क्लोराइड इज ए क्रिस्टलाइट, उसने इसको टैगिंग दे दी, टैग लगा दिया एक कि सोडियम क्लोराइड क्या है जी? क्रिस्टलाइट. बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, नो डाउट इट एक्ट एज क्रिस्टलाइट. बट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, जब आप इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं बच्चे, इट एक्ट एज कोलाइड. इसका मतलब साफ है कि बेंजीन चूंकि नॉन पोलर है, उसमें सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया. सोडियम क्लोराइड ग्रुप फॉर्म में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रुप फॉर्म में एग्जिस्ट किए, कोलाइडल फॉर्म में. पार्टिकल साइज कोलाइड का बड़ा होता भी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड इज बिगर देन दैट ऑफ क्रिस्टलाइन. यही डिफरेंस है. तो पानी में सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था, पार्टिकल साइज छोटा हो रहा था, सो इट वाज एक्टिंग एज क्रिस्टलाइड. व्हेरेज इन बेंजीन ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पा रहा था. बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, डज नॉट हेल्प इन डिसोसिएशन. ये ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रहे थे इसके पार्टिकल्स, तो जिसकी वजह से पार्टिकल साइज बड़ा था. तो जब हमने इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, इट कुड नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन. इसका मतलब है कि जो टैगिंग की किसने? थॉमस ग्रैम ने, कि नमक एक क्रिस्टलाइड है, वो गलत निकली. नमक डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. इन केस ऑफ वाटर इट इज क्रिस्टलाइड, इन बेंजीन इट इज कोलाइड. सो वी कैन नॉट कॉल सोडियम क्लोराइड as crystalline. We can say that sodium chloride is in crystalline state when in water, or sodium chloride is in colloidal state when it is in benzene. So it was said that it is better to talk of a substance in colloidal state or crystalline state rather than calling it as crystalline or colloid. ये बेहतर रहेगा कहना कि इस वक्त सब्सटेंस कोलाइडल स्टेट में है, इस वक्त सब्सटेंस क्रिस्टलाइडल स्टेट में है, बनिस्बत के ये कहने के कि ये सब्सटेंस क्रिस्टलाइड है या ये सब्सटेंस क्या है बच्चे? कोलाइड है ना. तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड जिसको उसने टैग कर दिया था ये क्रिस्टलाइड है, वो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट तरीके से बिहेव किया. इन वाटर इट एक्ट एज क्रिस्टलाइड, इन बेंजीन इट एक्ट एज कोलाइड. So it was better to talk about colloidal state rather than calling a substance as colloid. So what is colloidal state? Colloidal state है क्या? Colloidal state is the state of matter in which size of particle is such that they can pass through filter paper but not through animal or vegetable membrane. अब मैंने कहा particle size is such that क्या particle size होना चाहिए? 10 angstrom to 1000 angstrom. अगर पार्टिकल साइज इसके बीच में हो तो हम कहते हैं कि दिस सब्सटेंस इज इन कोलाइडल स्टेट. तो जब बेंजीन में हमने नमक को डिसॉल्व किया तो उसका पार्टिकल साइज इस रेंज में था. सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल कंप्लीटली एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए, ग्रुप्स में एग्जिस्ट किए, पार्टिकल साइज बड़ा रहा. जबकि पानी में उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन हुई, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल एंड हेंस इट एक्ट एज क्रिस्टलाइन. अब अंडरस्टूड है बच्चे? वो कह रहा है कि colloidal state is a state of matter in which particle size is such that they can pass through filter paper but cannot pass through animal or vegetable membrane. Particle size क्या बोल रहा है? 10 angstrom to 1000 angstrom. तो बच्चे अंडरस्टूड है कि अगर 10 angstrom से particle size नीचे होगा it will be called as crystalline, और अगर 1000 angstrom से ऊपर होगा, दो लिमिट लगती है ना यहाँ पे, ऊपर होगा, that will be called as suspension. The size of colloidal particle is intermediate between that of true solution and those of suspension. तो जो colloidal particle है बच्चे, उसका जो size है वो true solution और suspension के बीच में आता है. Let us have points of difference between these three types, that is true solution, colloidal solution and suspension. ये difference हम देख लेते हैं बच्चे.
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला है नेचर, टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में था, वो आपने कंप्लीटली पढ़ा कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जीनियस मतलब फेस, दैट इज सेम फेस। जैसे आप नमक को पानी में डालते हैं, इट इज वन फेस, कंप्लीटली एक फेस होता है, पानी पानी दिखता है। अब ये नहीं कह सकते नमक के पार्टिकल हैं पानी के हैं, ठीक है ना। सो ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों है? बिकॉज वी कैन डिस्टिंग्विश colloidal particles from the solvent, but in this case we call it dispersion medium। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट कहते हैं ना बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। वी कैन डिस्टिंग्विश डिस्पर्स्ड फेस फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम एंड हेंस कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन तो बच्चे इसमें तो नेक्ड आई से ही आप देख सकते हैं, रेत को पानी में डालो वो सस्पेंशन है। यू कैन डिस्टिंग्विश sand particles from water, it mean it is heterogeneous, where you can distinguish it to different phase, solid phase अलग दिख रहा है, पानी वाला phase अलग दिख रहा है। कोलाइडल सॉल्यूशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिनेमा हॉल में जाते हैं बच्चे तो रोशनी पड़ती है पीछे से, तो आप देखते हैं उस रोशनी में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। अगर वो रोशनी नहीं पड़े तो आपको डस्ट पार्टिकल विजिबल नहीं होते। बेसिकली वो कोलाइडल सिस्टम है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर इज ए कोलाइडल सिस्टम, अंडर सर्टेन कंडीशंस यू कैन सी दोस पार्टिकल्स। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट पड़े, आप देख पा रहे किसको? डिस्पर्स्ड फेस को। डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से डिस्टिंग्विश कर पा रहे, हेंस वी कॉल इट हेट्रोजेनियस। पार्टिकल साइज तो आपको पता ही है बच्चे कि अगर 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम होगा तो इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे होगा इट इज ट्रू सॉल्यूशन, 1000 एंगस्ट्रॉम अपर लिमिट से ऊपर होगा इट इज सस्पेंशन। सेपरेशन, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको क्या आप अलग कर सकते या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लगा के ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सॉल्यूट को सॉल्वेंट से हम अलग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट। कोलाइडल सॉल्यूशन भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होता। बच्चे देखिए डेफिनेशन, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, इट मीन कोलाइडल पार्टिकल्स को भी आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सस्पेंशन हो जाती है। रेत के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते, इतना तो पता है आपको। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चे क्या है? जिसमें हमने अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसमें पोर साइज नॉर्मल फिल्टर पेपर से कम होता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें तो ट्रू सॉल्यूशन तब भी, ट्रू सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है तब भी अलग नहीं होते, वी कैन नॉट सेपरेट, बट कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। सस्पेंशन तो होगा ही होगा। अपीयरेंस, ट्रू सॉल्यूशन आपने देखा है बच्चे, नमक को पानी में डालें इट इज ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर तो आपको आर पार तो दिखता ही है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अब लाइट पड़े फिर आपको डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, फिर पाथ विजिबल होता है, अदरवाइज तो आपको दिखता है कि सारा एक जैसा ही है ना। तो इट मीन इट इज आल्सो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, बट सस्पेंशन ओपेक होती है। रेत को आप पानी में हिला दें फिर आर पार नहीं दिखता, रेत सैंड इन वाटर इज ए सस्पेंशन, सैंड को हिला दे क्या देखते आप? इट बिकम्स ओपेक, ठीक है। उसके बाद सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का नीचे बैठना, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं बैठते, जितनी देर मर्जी उनको रखे रखो, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल अंडर नॉर्मल कंडीशन नीचे नहीं बैठते, बट सेंट्रीफ्यूगेशन करो, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तेजी से उसको रोटेट करना आउटवर्ड्स, टेस्ट ट्यूब में डाल के एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, ऐसे करके रोटेट करती है जो पार्टिकल्स को पुश करके आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगाते हैं उसके ऊपर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्शन मीडियम से अलग कर सकते हैं। जहां तक सस्पेंशन की बात है बच्चे, आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें, रेत को पानी में डालें हिलाएं, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर रखते रेत के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। इट मीन यू कैन सेपरेट सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, दे सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद बच्चा गया डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूज का मतलब है बच्चे मिक्स होना, डिफ्यूजन, पार्टिकल साइज किसका छोटा है? सॉल्यूट सॉल्यूशन का, तो दे डिफ्यूज रैपिडली। कोलाइडल पार्टिकल जो कि बिगर इन साइज है कंपैरेटिवली, उनका मूवमेंट स्लो होगा, दे डिफ्यूज स्लोली, ठीक है बच्चे।
और जो सस्पेंशन है आपको पता ही, वो नीचे बैठ जाते हैं, उन्होंने इतना पार्टिकल साइज हैवी है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ गए। तो नीचे बैठ गए, डिफ्यूज कैसे करना, मिक्स कैसे करना, उन्होंने तो सेटल कर रहे हैं नीचे को, सो दे डोंट डिफ्यूज। टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट बच्चे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना याद रखें कि ट्रू सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलाइड सॉल्यूशन ऑब्जर्व इट शोज। जो मैंने आपको बताया ना कि सिनेमा हॉल में आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, डस्ट पार्टिकल दिखने लगते हैं। आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, डार्क रूम में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं डार्क रूम में, तब भी खिड़की से रोशनदान से लाइट पड़े, तब भी डस्ट जो आपका पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, वही टेंडल इफेक्ट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन शो टेंडल इफेक्ट, सस्पेंशन तो शो करती है, मतलब पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाना। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो तो पाथ को विजुअल करते ही करते हैं। अब आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो पार्टिकल सामने दिखेंगे, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, सो दे शो टेंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन होता है जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो जिसकी वजह से इनमें ब्राउनियन मोशन नेग्लिजिबल होता है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में पूरा एक टॉपिक है, वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना याद रखें कि ब्राउनियन मोशन ट्रू सॉल्यूशन नेग्लिजिबल शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है, सस्पेंशन मे शो का मतलब है कि अगर पार्टिकल साइज, जैसे उसने कहा, देखें बच्चे, इसका पार्टिकल 1000 अगस्ट्रॉम से ऊपर, 1000 अगस्ट्रॉम से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो नीचे बैठ जाएंगे, फिर ब्राउनियन मोशन नहीं ना। थोड़ा सा 1000 से ऊपर होगा पार्टिकल साइज, थोड़ा सा, देन दे कैन शो, यह लिखा है मे शो। लेकिन सबसे जो तीनों टाइप्स में जो सबसे ज्यादा शो करता है ब्राउनियन मोशन, वो कौन है बच्चे? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टेंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन। थैंक यू, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।